Now I want to come to the concept of making friends. I wanted to connect this because now in this age, in this day and age, we'll be making all kinds of friends in schools, in universities, except for homeschooling. Yeah, so you'll be making all kinds of friends, but you have to choose the right one. आप वो कैसे चूज़ करेंगे सही फ्रेंड? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि these are the people who I should sit with. और इसमें ही एक रिवायत, एक हदीस में आता है कि if these are the group of people and if this is the group of people you hang out with, जिसकी ये मफ़हूम है, if this is the group of people you hang out with, in the day of judgment and in the day of resurrection you would be raised with them. So for example, you surround yourself with people who are like यार bro, आज जो है ना फेज 6 में पार्टी हो रही है, तो आज जो है सीन ऑन है अपना, हाँ वो भी आ रही है. So this concept should be cleared. अगर हम उनके साथ घूमेंगे, so of course you'll be influenced with that. You'll be like यार कुछ नहीं यार, इससे तो ज़्यादा मेरे पास है. सही है. So what I'm trying to say is कि आपकी रेस किस में शुरू हो गई? To gain the materialistic element of this world. अच्छा. Basically, you're saying that we should stay away from the people who get drunk every night. To an extent, because it comes. You can take this as you can take this as a metaphor. For example, if you leave an apple in front of a rotten apple, it mostly would get rotten due to the elements of fungus and all that. And if you leave that same apple with a ripened fruit, then the chances of it getting, wasted is less, getting defected is less. तो जैसी आपकी सराउंडिंग होगी वैसे ही आप होंगे. You are defined by your friends. ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, चाहे आप 5 वक्त के नमाजी क्यों ना हो. आपने ये देखा होगा, ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत देखा होगा. आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस वर्ड्स बट दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपने देखा होगा अगर आपका एक दोस्त चरसी होगा तो यू वुड बी डिफाइंड विद दैट. भले आप नहीं पीते हो, भले आपका जो है आप है ना रोज़े रखते हो, आप नमाजें पढ़ते हो, बट इफ पीपल सी यू हैंगिंग आउट विद दैट पर्सन, दे वुड मेक अ लेबल ऑन यू. सही है. सो इफ यू वांट टू safeguard yourself from that, from those bohtans and all those labels, then you have to protect yourself from those friends. और ये जो सारे हैं ये आपके दोस्त नहीं हैं, because in the day of judgment they would not know you. So it is also mentioned that the people who you know in this world would not care about you, except for the people who you know just for righteousness, who you meet to get closer to Allah. So what do we understand from this? हमें तौहीद का concept clear हो गया. We know who our enemies are. If not our enemies, then we know who we should safeguard ourselves from. ये हमें अपनों में भी पाए जाएंगे, हमें ये गैरों में भी पाए जाएंगे. But we have to see these traits of personalities. आपको मैं एक साइकोलॉजी की स्टडी बताता हूँ. एक स्टडी है बाय बेंडूरा एट एल. उसमें उसने ये गौर से देखा था कि he wanted to observe कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन का जो एलिमेंट है वो कितना काम आता है. सही है. हमारा जो एलिमेंट है ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन. अब प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होती है? प्राइमरी सोशलाइजेशन ये होती है कि आप जब व्हेन यू आर ब्रॉट इन दिस वर्ल्ड, यू आर नर्चर्ड एंड यू आर नेचर्ड बाय योर मदर and you are brought up to this world by your father. You observe your father and you follow the things which he does. तो अगर वो नमाजी होंगे तो इंशाल्लाह you'll also be you'll be going to masjid and praying 5 times a day and all that. That is the primary element. The second element which he wanted to observe was the secondary element, the secondary socialization. And what is that? कि मीडिया हमें किस तरीके से अफेक्ट करता है, हमें जो है लोग किस तरीके से अफेक्ट करते हैं. If we go to school or colleges, how does our surrounding affect us, and how does the news affect us, how does cults affect us. So all these things ये हमें दूसरी चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं उसे ये देखना था. उसने ये देखा कि एक जो बच्चा होता है, even if that person has a good nature, अगर उस बंदे की अच्छी नेचर भी हो, but if he sees signs of aggression, तो एक मॉडल था जो एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा था. And this was a 5-6 year old kid. तो एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा था एक मॉडल. सही. इट वॉज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो एक जो है उसे एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है बच्चे को, और एक जगह पे एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाया जा रहा बच्चे को.
तो ये नतीजा ये निकला था, द पीपल हु वर बीइंग शोन द एग्रेसिव बिहेवियर दे टेंड टू इम्प्लीमेंट दैट ड्यू टू सेकेंडरी सोशलाइजेशन. एग्रेसिव टेंडेंसीज जिसे जुनूनियत भी कहते हैं, या एनी इफेक्ट ऑन योर सिस्टमेटिक बिहेवियर और योर न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर कैन ऑल्सो बी ड्यू टू योर फ्रेंड्स. ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? होल्ड ऑन, लेट मी फिनिश, विल श्योरली टेक क्वेश्चंस और विल ऐड समथिंग. तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? ये जब होती हैं व्हेन यू आर सराउंडेड विद लाइक माइंडेड पीपल. अगर उनका गोल ये है, यार ब्रो आज जो है मेरे पास कैश ख़त्म हो गए हैं तो आज तुम लैंड कर दो, मेरा स्टफ़ आ जाएगा. अगर उनकी आइडियोलॉजी ये है, सो यू नो वेयर यू आर हेडिंग. अगर उनकी आइडियोलॉजी ये है, ब्रो मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं, देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ हंग्री राइट नाउ, मुझे इसे पैसे देने हैं, कैन यू लैंड मी सम मनी, तो आपको प्रायोरिटी समझ में आ गई. ये सिर्फ एक एग्जांपल है. आई एम नॉट पिकिंग एनीवन, आई एम नॉट गिविंग फतावाज ओवर हियर. दिस इज़ अ टर्मिनोलॉजी विच कैन बी यूज इन जनरल, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ. या तो हम लोग खामोश हो जाएं कि दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, या तो इसे एक्सेप्ट करें और एक्नॉलेज करें कि दीज थिंग्स आर हैपनिंग, बट वी विल प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम. सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू फिनिश विद दिस, दैट इफ यू बिलीव in the Surah Ahad, which is Qul Huwallahu Ahad, if you believe in the oneness of Allah, then you would make friends for what is liked upon Him, what He likes, not what you like. अगर आपको पता है अल्लाह ताला किससे खुश होते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया कि you are brought to this world for what? For playing, for smoking weed all day, for going out with your friends and making rings, all kinds of sorts of stuff. जब हमें ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि नो दिस इज़ नॉट इट. अल्लाह ताला ने मेंशन किया कुरान में कि द जिन एंड द ह्यूमन काइंड, द मैन काइंड एंड द जिन्नात, दे आर ब्रॉट टू दिस वर्ल्ड टू वर्शिप अल्लाह. और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो इंशाल्लाह आवर लाइफ विल बी ऑन द राइट ट्रैक. सो दैट्स इट. आई होप कि जो भी सुना, जो भी समझा, यू ट्राई टू स्प्रेड दैट वर्ड और अपने पे इम्प्लीमेंट करना. और ये सबसे बड़ी तालीम और ये सबसे बड़ा इल्म मेरे ख़ुद के लिए है, बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. मैं ख़ुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं इस चीज़ों से गो थ्रू कर रहा हूँ तो ही मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, आई सी दिस. तो ये मेरे लिए ख़ुद के लिए सबसे पहले रिमाइंडर है. से जितना आप, रिमाइंडर इज़ बेनिफिशियल फॉर द बिलीवर्स. आप जितना ख़ुद को रिमाइंड करेंगे, जितना आगे वाले को रिमाइंड करेंगे, उतना आपके लिए पहले ख़ुद अच्छा होगा और बाकी ऑफ कोर्स दूसरों के लिए होगा. तो जो भी सुना वो इंशाल्लाह आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, और कहा सुना माफ़. व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.